Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to explain exercise 5.10 multiply of class 3rd mathematics. So let's start the video with an example. Okay, here given that multiply 15 by 3, clear, 15 multiplied by 3. First of all we multiply 3 with unit digit and then we multiply 3 with tens digit. Okay, so first multiply 3 into 5. 3 multiplied by 5. 3 5s are 15. So for 15 we just only write here 5. 3 5s are 15 but write here just only 5 and 1 as a carry. Okay. Now 3 1s are 3 and plus 1 4. क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे रखी जाएगी और टेंस डिजिट एज ए कैरी हो जाएगी. उसके बाद 3 1s are 3 and plus 1 is equal to 4. So 45 as a result. Same as we can solve exercise problem. So let's start exercise 5.10. Here first question, multiply 38 with 2. So first multiply 2 by unit digit, ones digit, and then multiply 2 by tens digit. So 2 8s are 16. So for 16 we just only write here as a 6. 2 8s are 16. So write here 6 and 1 as a carry. Clear? Now 2 3s are 6. 2 8s are 16. Write here 6, 1 as a carry, and 2 3s are 6 and 1 carry is equal to 7. So 76 as a result. Clear? Now next part B, 25 multiplied by 3. If we want to multiply 25 by 3, first multiply 3 by 5. 3 5s are 15. So for 15, we just write here 5 and 1 as a carry. Clear? Now 3 2s are 6 and 1 7. 75 as a answer. फिर से देख लीजिए क्या किया गया. सबसे पहला काम 3 multiplied by 5. 3 5s are 15. तो यहाँ पे जस्ट ओनली 5 लिखा जाएगा, 1 एज ए कैरी, एंड 3 2s are 6 plus 1 7. 3 2s are 6 plus 1 7. So your result as a 75. When we multiply 25 by 3 we get answer as a 25. Clear? Same as you can solve C and D part. Clear? Now I am going to explain F part. 14 multiplied by 7. First 7 multiplied by 4. 7 4s are 28. 7 4s are 28. For 28 we write just here 8 and 2 as a carry. Okay. Now क्या किया, 7 4s are 28. यहाँ पे क्या लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ 8 और 2 एज ए कैरी वो यहाँ पे लिख दिया गया. अब again 7 multiplied by 1. 7 1s are 7 plus 2 9. जो कैरी है उसको ऐड कर लेंगे. 7 1s are 7 plus 2 is equal to 9, means 98 as a answer. Clear? Now one more question from this line. Here part H, 13 multiplied by 7. So 3 7s are 21. For 21 we just write here 1 and 2 as a carry. You can write here 2. Now 7 1s are 7 and plus 2 9. So 91 as a answer. 13 7s are 91. Clear? And last question. Here 12 multiplied by 4. Part J, 12 multiplied by 4. First multiply 4 2s are 8. 4 2s are 8. Clear? And 4 1s are 4. So 48 as a answer. Clear? Same as try to solve remaining part of this exercise. Solve all the part of exercise 5.10. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Okay. Now next exercise 5.11 we will start in next video. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman
and in this video I am going to explain exercise 5.11. Here same topic we again discuss here, multiplication of 2-digit number with a 1-digit number, 42 multiplied by 3. Okay, first multiply 3 with 2, 3 2s are 6 and 3 4s are 12. So 126 as the answer. Same as we can solve B, C and D part. Now I am going to explain part B. Look here, 71 multiplied by 2. First 2 multiplied by 1. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s 2, क्लियर. एंड अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, 7 में. तो 2 7s 14. यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 7s 14. योर रिजल्ट इज 142. When we multiply 71 by 2, we get 142 as a answer. And one more question of this exercise, line D. 31 multiplied by 6. So first 6 multiplied by 1. ध्यान दीजिएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना. 6 1s 6, ये हो गए. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6 3s 18. So 186 as a result. Clear? Okay. One more question here. Part E, question E. 91 multiplied by 5. क्या करेंगे इसमें? First multiply 5 by 1. 5 1s 5. So right here 5. And then multiply 5 with 9. 5 9s 5 9s 45. So you can write here 5 9s 45. So 455 as the answer. And last question, F. 32 multiplied by 2. First multiply 2 by 4. We get 2 4s 8 and 2 3s 6. So 68 as the answer. Clear? One more question. Look here. 30 multiplied by 4. So when we multiply any number with 0, we get as a 0. So 4 zeros are 0 and 4 3s are 12. ध्यान दीजिएगा, इधर से मत स्टार्ट करिएगा मल्टीप्लाई करना, यहाँ से शुरू करते हैं. 4 zeros are 0 and 4 3s are 12. So 120 as a answer. On next page, page number 86, some questions are given. So try to solve this question. 61 multiplied by 5. So first multiply 5 by 1. 5 1s 5. We can write here 5 1s 5 and then multiply 5 with 6. 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15, 5 4s 20, 5 5s 25 and then 5 6 30. So we can write here 30, means your answer is 305. Clear? Same as try to solve this question and this also. I am going to solve last question of the exercise, 80 multiplied by 3. Okay. Now 3 multiplied by 0. When we multiply any number by 0, we get result as a 0. So 3 zeros are 0. Okay. And then 3 multiplied by 8. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 and 3 8s are 24. So you can write here 24, means your result is 240. When we multiply 80 by 3, we get result 240. Okay. So try to solve rest part of the exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. In next video, we will start exercise 5.12. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5.12 of class 3rd mathematics.
So let's start the video from first question. Multiply 69 by 7. Okay, 69 by 7. So first we multiply 7 by 9 and then we multiply 7 by 6. ये करना है. सबसे पहला क्या करना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 होगा, जो आएगा वो लिखा जाएगा, कुछ कैरी होगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा. उसके बाद 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 करना होगा. 7 9s, first multiply 7 by 9. 7 9s, 7 9s 63. ओके, 7 9s 63. तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 3 एंड 6 एज ए कैरी, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा. क्लियर. अच्छा, अब इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया. अब क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये जो 6 दिया गया था क्वेश्चन में, वो कैरी की बात नहीं कर रहा हूँ. 7 6 42. 42 एंड 6 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 46. 7 6 42 एंड 42 प्लस 6 48. सो आपका आंसर कितना हो गया, 483 एज ए आंसर. फिर से देख लीजिए क्या किया गया है. फर्स्ट मल्टीप्लाई 7 बाई 9. 7 9 63. So you can write here 3 and 6 as a carry. 7 6 42 plus 6 is equal to 48. Means when we multiply 69 by 7, we get 483 as a result. Is it clear? Now start second part, B. Okay. 76 multiplied by 8. फिर से वही काम करना होगा. First we multiply 8 by 6. 8 6 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 and 8 6 48. So for 48 we just write here 8. Clear? And 6 as a carry, you can write here 4. 8 6 48, write here 8 and 4 as a carry. Again multiply 8 by 7. 8 7 56. 8 7 56 and plus 4. So 56 plus 4 is equal to 60. आप इसको कहीं साइड में ऐड कर लीजिएगा. 8 7 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60. तो यहाँ पे 60 आ जाएगा. तो रिजल्ट कितना हो गया, 608. When we multiply 76 by 8, we get result as a 608. Okay. Now one more question from this line. 42 multiplied by 9. Okay. 9 multiplied by 2. 9 2s 18. 9 2s 18. So write here 8. 1 as a carry, you can write here 1. 9 4s 36. 9 4s 36 plus 1 37. Means 778. 378 as a answer. Clear? क्या करेंगे, पहले 9 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ. 9 2 18. So write here 8. 1 as a carry. 9 4 36 plus 1 37. So 378 as a answer. Now next question. Question F. 52 multiplied by 8. So 8 2 16. We can write here 6 and 1 as a carry. Now 8 5s 40. 8 5s 40 plus 1 41. So 416 as a answer. Clear? Last part of this line. 37 multiplied by 9. Your H, question H. 37 multiplied by 9. So first multiply 9 by 7. 9 7s 63. 9 7s 63. So write here 3 and 6 as a carry. Clear?
9 3s are 27 plus 6 33. फिर से देख लेते हैं. 9 7s are 63. So write here 3 6 as a carry and 9 3s are 27 plus 6 33. 27 में 6 ऐड कर दीजिए 33 आ जाएगा. So your result is 333. Clear? Last part of the exercise here. K. 85 multiplied by 3. Okay, first multiply 3 by 5. 3 5s are 15. So for 15 we write just here 5 1 as a carry. 3 5s are 15. Write here 5 1 as a carry and 3 8s are 24. 24 plus 1 25 means your result is 255. Okay, so try to solve rest part of the exercise. In case of any doubt you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5.13 on page number 87. So first start the exercise from first question. 51 multiplied by 8. Okay, 51 multiplied by 8. देखिए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने इससे पहले की एक्सरसाइज में किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता जाएगा. फर्स्ट मल्टीप्लाई 8 by 1. 8 1s are 8. Clear? And 8 5s are 40. So 408 as a result. Clear? ध्यान दीजिएगा, इधर से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मत पहले कर दीजिएगा. फर्स्ट मल्टीप्लाई 8 by 1's digit. 8 1s are 8 and 8 5s are 40. Now second part, 54 multiplied by 6. First 6 multiplied by 4. यहाँ से स्टार्ट करना है, 1's प्लेस पे. 6 4s are 24. So write here 4 and 2 as a carry. 6 5s are 30 plus 2 32 means 324 as a answer. फिर से देख लीजिए क्या किया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4s are 24. So write here 4 2 as a carry and 6 5s are 30 plus 2 32 means 324 as a answer. Okay, same as you can solve part C and D. I am going to explain next question. Here question number F. 53 multiplied by 6. So first multiply 6 by 3. पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 6 3s are 18. 6 3s are 18. तो 18 के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे 8 and 1 as a carry. Clear? क्या किया, 6 3s are 18. So write here 8 and 1 as a carry. अब 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में. So 6 5s are 30. 6 5s are 30 and plus 1 31. So यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5s are 30 plus 1 is equal to 318. Clear? Now here 46 multiplied by 6. First of all multiply 6 by 6. So 6 6 are 36. For 36 we can write here 6 and 3 as a carry. Now 6 4s are 24. 24 plus 3 27. So 276 as a result. क्या किया, 6 multiplied by 6. 6 6 are 36. For 36 we write here 6 and 3 as a carry. 6 4s are 24 plus 3 is equal to 27. Okay, same as try to solve question E and H. Okay, on next page some questions are given on page number 88. Solve first part. 46 multiplied by 5. First multiply 5 by 6. 5 6 are 30. For 30 we write here 0 3 as a carry. Clear? Now again 5 multiplied by 4. 5 4s are
20. 20 plus 3 is equal to 23. So your result is 230. Okay, same as try to solve question N, O and P. Clear? I am going to explain question number Q here. Now 54 multiplied by 4. First multiply 4 by 4. 4 4s are 16. So write here 6, 1 as a carry. 4 4s are 16. Write here 6, 1 as a carry. Now 4 5s are 20 plus 1, 21. So your result is 216. Clear? Result is 216. One more question. Question number S. 69 multiplied by 4. So first multiply 4 by 9. 4 9s are 36. Write here 6, 3 as a carry. Now 4 6 are 24 plus 3, 27, means 276 as a result. Last part of the exercise here, 37 multiplied by 9. First multiply 9 by 7. 9 7s are 63. For 63 we write here just only 3 and 6 as a carry. 9 3s are 27. 9 3s are 27 plus 6, 33. So your result is 333. Okay. I hope it is clear to everyone. So try to solve all the question of the exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. In next video, we will start another exercise. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5.14 of class 3rd mathematics. So let's start the video from first question. Estimate the product, check the answer by the actual multiplication. First we will discuss the problem with an example. Here first example is given in your book on page number 88. Estimate the product of 47 and 8 चेक बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनका प्रोडक्ट निकालना है एस्टिमेट करके और उसके बाद रिजल्ट को चेक करना है एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से. तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं एटलीस्ट 47 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेंगे रिजल्ट मिल जाएगा. बट एस्टिमेटेड वैल्यू जब निकालनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे. सो 47 का नियरेस्ट 10 क्या है 50. 47 का नियरेस्ट 10 50. तो 47 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो गई 50. Now 50 multiplied by 8 is equal to 400. 50 multiplied by 8 is equal to 400 and actual multiplication 47 multiplied by 8 376. So it is estimated multiplication and here as a actual multiplication. Same process we can apply in exercise problem. So let's start the exercise. First question, estimate the product, check your answer by the actual multiplication. 48 multiplied by 8. First of all, write the question. 48 multiplied by 8. It is given in first question, part A. Find the product of 48 by 8. Means 48 and 8 को multiply करके आपको मालूम करना है कि इसका result क्या आएगा. First of all, change 48 in its nearest 10. ठीक है. Nearest 10 of 48. Nearest 10 of 48 is क्या हो जाएगा इसका nearest 10 50. Okay. Now multiply 50 by 8. Multiplication of 50 by 8 आप किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई कर लीजिए. It is your choice. 8 zeros are 0 and 8 fives are 40.
So 400 as a estimated product. Clear? It is estimated value. Estimated value. Estimated value. Clear? एंड एक्चुअल वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी? नो, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन निकाल दें. एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 48 बाई 8 मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? अभी हम लोगों ने इससे पहले के एक्सरसाइज में देखा है. फर्स्ट मल्टीप्लाई 8 बाई 8. 8 8 ज़ 64. So write here just only 4 and 6 as a carry. Now 8 4 is 32 plus 6 38 means 384 as a actual product. Actual product. So यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे पहला काम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करिए, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट से चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है. तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? 384 एंड एस्टिमेटेड वैल्यू एज ए 400. ये दोनों काम आप लोगों को करना है. क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का. देखिए कौन कौन से दिए थे. 48 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये तो मैंने सॉल्व कर दिया. 34 मल्टीप्लाइड बाई 5, 75 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 62 मल्टीप्लाइड बाई 6. हम ऐसा करते हैं 34 को भी सॉल्व कर देते हैं. देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू होती क्या है. जैसे 48 है तो 48 के बाद क्या आएगा? 49 एंड 50. 34 है, इसके बाद क्या आएगा? इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आपका 30 तो और इसके बाद आपका 40 आएगा. तो 30 और 40 में कौन चीज़ नियरेस्ट टू 34 है? अगर से यहाँ पर 1 ये 1 डिजिट पे 1 2 3 4 है तो हम 30 वाली नंबर लिखेंगे. बट अगर यहाँ पर 5 6 7 8 9 है तो हम आगे का नंबर लिखेंगे, मतलब 40 वाला लिखेंगे. तो 30 आएगा या तो 40 आएगा. 30 कब आएगा? जबकि ये 34 की जगह पे आपका 34 33 32 31 तक कुछ होता. तो 31 से लेकर 34 तक के लिए 30 आएगा और 35 से लेकर 39 तक के लिए 40 बन जाएगी आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू. नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. इस क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है आपको? अब देखिए अगर से 34 का नियरेस्ट 10 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 30. ये बताया है ना. अब अगर हमें इसको प्रोडक्ट मालूम करना तो क्या होगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 5. ना 5 0 0 एंड 5 3 15. सो 150 एज ए एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. ये कितना हो गया? एस्टिमेटेड. ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई आपकी. एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना होगा? 34 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे. आइए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकाल देते हैं. एक्चुअल प्रोडक्ट 34 मल्टीप्लाइड बाई 5. 5 4 is 20. So write here 0 and 2 as a carry. You know 5 3 is 15 and 2 17. So 170 as a actual product. बट अगर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे तो 150 रिजल्ट मिलेगा. बट एक्चुअल प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो 170 आ जाएगा. क्लियर? इसी तरीके से आपका 75 है और 90 है. तो 75 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लीजिएगा. 62 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लीजिएगा. आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Sheila wants to buy 5 notebooks cost 28 rupees each. Approximately how much money does she need? उसको लगभग कितने पैसे की ज़रूरत होगी? तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू मालूम हो जाएगी. बट एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल दिए तो 28 का राउंड ऑफ कर लेंगे 30 में. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेंगे, आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाइड बाई 5. बट 28 की हमको नियरेस्ट वैल्यू निकालनी होगी, नियरेस्ट 10 वैल्यू. ये कितना हो जाएगा? एज ए 30. अब हम क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं. हमको मालूम हो जाएगा कि उसको अप्रॉक्सीमेट कितने वैल्यू की ज़रूरत है. 5 0 0 एंड 5 3 is
15 मीन्स उसको अप्रॉक्स 150 रुपीज़ की ज़रूरत है उस नोटबुक्स को परचेज करने के लिए। अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 32 बॉक्सेस ऑफ x विद 6x इन ईच बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी x आर देयर। देखिए जब अप्रॉक्सीमेटली पूछ ले मीन्स आपको उसको राउंडेड वैल्यू निकालनी है, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब उसके नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 6 करें, टोटल x कितने हो गए 32 मल्टीप्लाइड बाई x मालूम कर लेंगे आ जाएगा। बट अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, लगभग आपसे पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, एक्चुअल नहीं पूछा है। तो इसको नियरेस्ट टेंस में कर लें। नियरेस्ट टेन ऑफ 32, नियरेस्ट टेंस ऑफ 32 इज 30. Now 30 multiplied by 6, 6 zeros are 0 and 6 threes are 18 means approximate value is 180. लगभग कितने x हो गए 180, इट इज योर आंसर। बट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन होता तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेते, आपको एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू वहां से मालूम हो जाती। क्लियर? So exercise 5.14 is completed. Only 3 questions are there. So complete exercise 5.4 in your copy. In case of any doubts, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. In next video, we will start exercise 5.15. Thank you everyone. Goodbye. Everyone. I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5.15 of class 3rd mathematics. So let's start the video from first question. A fruit seller has 4 rows of apple with 25 apples in each row. How many apples does he have? Means एक fruit seller है जिसके पास 4 rows है apple की, means 4 line है apple की। इन ईच रो देयर आर 25 एप्पल्स। हर रोज में हर लाइन में कितने एप्पल है 25 एप्पल्स है। आपको बताना है कि टोटल उसके पास कितने एप्पल है, हाउ मेनी एप्पल्स डज ही हैव, उसके पास टोटल कितने एप्पल है। तो सबसे पहला काम, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 4 टाइम्स ऐड कर ले तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 100। अदरवाइज वी मल्टीप्लाई 25 बाई 4 means 25 multiplied by 4 times. Why 4 times? Because there are 4 rows. So 4 5s are 20. 4 5s are 20. Right here 2. Right here 0. 2 as a carry. 4 2s are 8 plus 2 10. So total your answer is 100. Means total number of apple is equal to 100. Clear? So same as we can solve second question. Here Maria bought 18 balloons. Each balloon cost 5 rupees. How much money did Myra spend? Myra के पास टोटल कितने बैलून्स हैं 18 और हर बैलून की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच बैलून इज 5 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड मायरा स्पेंड? मायरा को कितने पैसे खर्च करने होंगे उन बैलून्स को लेने के लिए, या उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे 18 बैलून्स को लेने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैलून्स, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा एज ए 90 रुपीज़। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लुक हियर, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स इज 18, कॉस्ट ऑफ ईच बैलून इज इक्वल टू 5। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 18 मल्टीप्लाइड बाई 5। Now 5 multiplied by 8. First multiply 5 with 8. 5 8s are 40. 5 8s are 40. So we can write here just only 0. Okay. And 4 as a carry. You can write here 4 as a carry. Clear. Now 5 1s are 5. 5 1s are 5 plus 4 is 9. So your result as a 90 rupees. It is your answer. क्या किया? सबसे पहला काम 5 8s are 40, right here 0, 4 as a carry and 5 1s are 5 plus 4 9. So your result as 90 rupees. Clear? Now next, third question. In question number 3,
There are 36 stamps in a packet. How many stamps are there in 8 packets? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर से एक पैकेट पे 36 स्टैम्प्स हैं तो बताइए कि ऐसे ही 8 पैकेट्स में कितने स्टैम्प होंगे। एक पैकेट में कितने? 36। टोटल नंबर ऑफ अगर 8 पैकेट हो जाए तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हो जाएंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिएगा नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ए पैकेट। एक पैकेट में कितने स्टैम्प है? 36। और ऐसे ही आपके कितने पैकेट्स हैं? टोटल 8 पैकेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब अगर हम इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा टोटल 8 पैकेट्स में आपके कितने स्टैम्प्स हैं। नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 3 में। 8 6 48, 8 6 48। So सिर्फ राइट हियर 8 and 4 as a carry. You can write here 4 as a carry. क्या हुआ? 8 6 48, सिर्फ यहाँ पे 8 लिखा जाएगा एंड 4 एज ए कैरी। नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 3 में होगा। 8 3 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हो गए? 288 स्टैम्प्स। इट इज योर आंसर। क्या किया? सबसे पहला काम 36 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 48, राइट हियर 8, 4 एज ए कैरी। 8 3 24 प्लस 4 28। 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू 288। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Mary's teacher bought 42 bundles of pencil of class to class. There are 6 pencils in each bundle. How many pencils are there altogether? Mary's की जो टीचर्स थी उन्होंने 42 बंडल्स पेंसिल खरीदी क्लास के लिए, और अगर एक बंडल में 6 पेंसिल है तो आपको बताना है कि टोटल कितनी पेंसिल हो गई 42 बंडल्स में। हम क्या करेंगे? 42 नंबर ऑफ बंडल्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बंडल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या करना है? 42 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ बंडल्स कितने हैं आपके? 42 एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बंडल 6। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई कर दें 42 बाई 6। 42 मल्टीप्लाइड बाई 6। नाउ पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया जाएगा। नाउ 6 2 12, 6 2 12। सो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 2 एंड 1 एज ए कैरी। आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 4 24 प्लस 1 25। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी? 252। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज 252। क्लियर? क्या किया? मल्टीप्लाई 42 बाई 6। 42 को 6 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हो जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच will 27 cupcakes cost if each cupcake cost 9 rupees? 27 cupcakes की कॉस्ट क्या होगी अगर से एक कपकेक की कॉस्ट 9 रुपीज़ है? तो अगर हम 27 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स 27 एंड कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक इज 9 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। सो 27 मल्टीप्लाइड बाई 9। 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 7 में। उसके बाद 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। सो 9 7 63। अब इसमें से 3 लिख लिया जाएगा एंड 6 एज ए कैरी। 6 एज ए कैरी। नो 9 2 18 प्लस 6 24।
मीन्स टोटल कॉस्ट एज ए 243 रुपीज़। क्लियर, इट इज़ योर आंसर। क्या करना होगा, जो एक की कॉस्ट है और टोटल नंबर ऑफ केक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्रिकेट बॉल्स आर देयर इन 9 बॉक्सेस ऑफ 30 बॉल्स ईच। अगर से हर बॉक्स में 30 बॉल्स हैं तो आपको बताने की टोटल कितनी बॉल्स होंगी अगर आपके पास 9 बॉक्स है। तो क्या कर लीजिए, 30 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। 30 एंड 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ 7 क्वेश्चन, देयर आर 64 एग्स इन ए कार्टन, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 9 कर्टन्स। अगर से एक कर्टन में 64 एग्स हैं तो ऐसे ही 9 कर्टन्स में टोटल कितने एग्स होंगे। सो सिंपली मल्टीप्लाई 64 बाई 9, 64 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स। अगर एक वीक में 7 डेज हों तो ऐसे ही 52 वीक्स में कितने डेज होंगे। सो मल्टीप्लाई 52 बाई 7, 52 मल्टीप्लाइड बाई 7, यू गेट द आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अपने से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। आई होप ये आप लोग ट्राई करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नफीसा हैज़ 56 मार्बल्स, श्याम हैज़ 3 times the number of marbles that नफीसा हैज़, हाउ मेनी मार्बल्स डज श्याम हैव। आपसे कहा गया कि नफीसा के पास 56 मार्बल थे, जबकि श्याम के पास नफीसा के जो मार्बल हैं उसके 3 times हैं, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 56 कर देंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ श्याम हमको मालूम हो जाएगा। सो 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 10th, अ शॉपकीपर हैज़ 7 पैकेट्स ऑफ स्टैम्प, इफ ईच पैकेट हैज़ 75 स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर ऑल टुगेदर। अगर से शॉपकीपर के पास 7 पैकेट हैं स्टैम्प्स के और हर पैकेट में 75 स्टैम्प्स हैं, तो बताइए कि शॉपकीपर के पास टोटल कितने स्टैम्प्स हैं। सो 75 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो ये इतना काम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सिंपली आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। ओके। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। एक्सरसाइज 5.15 अपनी अपनी कॉपी पे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कॉपी कंप्लीट होने के बाद मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.16। Now start exercise 5.16, multiply by the lattice method. So first we will start the exercise with an example. Example number 1 on page number 90. Then we will back to the exercise. Let's see the example number 1. अच्छा, अभी जो मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने मेथड देखा है उससे एक अलग मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। वो मेथड क्या कहलाएगा? लैटिस मेथड कहलाएगा। इसमें करना क्या है आपको पहले ये समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई 48 बाई 3, 48 एज ए 2 डिजिट नंबर एंड 3 एज ए 1 डिजिट नंबर। सो राइट हियर 4, 8 एंड 3 ऐसे लिख लिया आपने। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, इसको और इसको ये डायगोनल शेप में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे और ऐसे, ये इतना काम आपका हो जाएगा। अब आपको सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना है। 3 8 ज़ा 24, सो 2 एंड 4 इस तरीके से लिखिएगा। 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अच्छा, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 4 ज़ा 12, सो 24 तो पहले से लिख चुके हैं। 3 4 ज़ा 12, सो 1 एंड 2 ये पे लिख लिया गया। ये इतना काम आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में करते चले आ रहे थे। अब देखिए इन्होंने यहाँ कलर्ड बॉक्स शो किया, उसका सेंस क्या है कि ये तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है इस बॉक्स में, तो यहाँ पे 4 आ गया।
यहाँ पे 2 डिजिट थी ना, 2 and 2, सो ऐड दिस टू नंबर, 2 + 2 4 एंड यहाँ पे 1 है, सो 144 एज ए रिजल्ट। ये देखिए इन्होंने एरो से इंडिकेट किया, यानी कि स्टार्ट यहाँ से करना है, 144 एज ए आंसर। क्लियर? तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई हम इस मेथड से कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 5.16। फर्स्ट क्वेश्चन, 36 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्या नंबर है आपका? 36 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है ना। सबसे पहला काम देखिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से आपने एक कॉलम बना दिया। यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, 3 and 4, सो यू कैन राइट हियर 36 ना, 36 एंड राइट हियर 4 ना। 36 को 3 and 6 ऐसे लिख दिया और ये 4 को ऐसे लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, ज़रा से ये समझिएगा, ऐसे बना दिया। ठीक, ये इतना काम तो इजी था। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 4 6 24, 4 6 24, सो राइट हियर 2 and 4, ये हो गए। नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 12, सो राइट हियर 12। अब देखिए क्या होगा, ये पूरा आपका एक कॉलम है। ठीक, इसमें कौन से डिजिट है? 4, सो राइट हियर 4, और ये दोनों एक साथ आएगा, ये इतना नंबर आपका एक साथ आएगा। तो इसमें दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए, 2 + 2 = 4 एंड लास्ट ये आपका वैसे ही आ जाएगा 1, सो 144 ना, 144 एज ए आंसर। बस यही काम करना है आपको। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, बी पार्ट, 24 मल्टीप्लाइड बाई 7। Again first digit as a 2-digit number, so write like this, 2 4 7। क्लियर? इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, 7 4 28 एंड 7 2 14, ये वैसे ही आएगा 1 2 + 4 6 एंड ये 8, सो 168 एज ए आंसर, 168। एक और देख लेते हैं, पार्ट डी, 50 मल्टीप्लाइड बाई 6। फिर से देखिएगा, 50 में मीन्स 5 0 एंड 6, ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 6 0 0, दोनों में 0 लिखिएगा, एंड 6 5 30। अब इनको ऐड करिए, 0 0 + 0 0 एंड 3, तो आंसर कितना हो गया? 300 मीन्स 300 एज ए आंसर, 300 एज ए आंसर। सेम एज ट्राई टू सॉल्व पार्ट सी, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6, और अगर से नहीं होगा तो आप फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.